आज हमारे साथ जो ब्रिज जी ने शेयर किया वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही यूनिक है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। उन्हें कोई सवाल, कोई शंका नहीं है। आप हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, हमें गाइड कीजिए। Right. It is such a beautiful experience, or metaphysical experience, a spiritual experience, a आध्यात्मिक अलौकिक experience. And it is true that in the life after death states we encounter several such experiences. What is shared today by Brij Bihari ji, Yes. it is very profound experience. And I remember right now about Narada Puran. India is the continent, this is the land of all the ancient wisdom and Ji. scriptures. जी। One of the scriptures is Narada Puran. I remember the story of Narada Puran, what is written in that. One day, Yamadharmaraj and Chitragupta was very much worried. Very much, they were feeling a little bit disturbed because there was no one coming there. The hell, the Narakaloka is completely free. No traffic there. No one is coming there. He is a little worried to take the payment, the salary without doing any job. It is written in Narad Puran like a story. This is a metaphor. This is Right. a story is like Antarardha is there. There is inner meaning behind all the scriptures. So they wanted to now go to someone and like Brahma to seek some help to understand about this. So they asked initially the intergalactic master, interdimensional master, Narada Mahamuni is there. He connects, he is the bridge actually. So he was there, he comes there and the Yamadharmaraj asks Narada Mahamuni, no, this is the situation, what can I do? And he says that, what's happening on the earth? There is a king called Rukmangada. That king is so evolved soul, he is teaching everyone about Ekadashi Vrat. That Vrat is about fasting on one particular day where Vaikuntha Dwara is opened, where you directly reach to Vaikuntha, a higher plane, a higher Sukshma Urdhva Loka. So that's the reason, entire all the people in the kingdom, no one is doing any sins anymore. No papa they are doing, no sins at all. So everyone is directly going to Vaikuntha. They're bypassing Yamadharmaraj or Yamalok. So then finally they went to Brahmaji, and Brahma thought that now we have to do something. I will create now Mohini. I will send to that place and she will distract Rukmangada from all these activities, good positive activities. Okay. And then Mohini came here and she tried to distract Rukmangada. She could succeed to a lot extent. And it's about the life after death. मृत्यु के बाद क्या होता है? What is soul? What is this Brahmand? All this wisdom is there. It's a true experience. It is a right experience. Near-death experiences is one of the best experiences where a person is clinically dead for 4 hours and went to the other side. Coming back, they are known as enlightened beings. It is nothing less than enlightenment. Enlightenment is to know that I am not the body. This is only my vehicle. This is only a temporary instrument for me. I am the soul. This is the enlightenment. थैंक यू सो मच टफिन, वाकई बहुत ही एनलाइटन फील कर रहा हूँ मैं। आज हमारे साथ हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, उनकी मदद से आज आप दोबारा उन 4 घंटों में जा सकते हैं जी। और जो आप जानते हैं वो या दोबारा देख सकते हैं या उसकी गहराई में और उतर सकते हैं। तो मैं
आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप तैयार हैं उसके लिए? डॉक्टर साहब के साथ में गाइडेड मेडिटेशन मेडिटेशन के लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा जी। कि आपके मन में कोई सवाल नहीं है, कोई शंका नहीं है, लेकिन यकीन मानिए आपके अनुभव को लेकर मेरे और मेरे दर्शकों के मन में काफ़ी सवाल होंगे, जो आपके इस अनुभव के साथ जो मार्गदर्शित ध्यान में आपको डॉक्टर न्यूटन ले जाएंगे, उसके ज़रिए शायद हमें उसके बारे में और क्लैरिटी और निदान मिल जाएगा हमें। तो शुक्रिया डॉक्टर न्यूटन। आज ब्रिज बिहारी गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शित ध्यान के जरिए अपने अनोखे अनुभवों को दोबारा जिएंगे, लेकिन इस बार उनके साथ होंगे डॉक्टर न्यूटन, जो ब्रिज बिहारी को उनकी अनोखी अनुभूतियों के राज समझाएंगे, ताकि जान सकेंगे हम सब की वो क्या बात हुई जिसने टाल दिया काल की चाल को। अपने आपके आंखें बंद कीजिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए। हर अंदर जाती सांस के साथ शीतल ऊर्जा को अपने शरीर में जाने दीजिए। हर बाहर जाते सांस के साथ थकान और तनाव को अपने शरीर से निकाल दीजिए। पूरी तरह तनाव मुक्त हो जाएंगे। In this state of deep meditative relaxation, you can access the subconscious memories. Allow yourself to go back in time to that memory of near-death experience which you had. Remembering, recalling every detail, reliving, re-experiencing it again. Be there. जो महसूस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, इस बारे में बताइए। उसे शब्दों में व्यक्त कीजिए। दो दिव्य पुरुष किए हुए हैं। सिर पर मुकुट पहने हुए हैं। कमर में पीली फेंट बंधी हुई है। मुझे साथ चलने के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संवादहीन अवस्था, go up again and again. कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय when you're going up? कहाँ जा रहा हूँ? ये लोग कौन हैं?
गहरे बादल, काली घटाएं, उन सबको पार करते हुए एक दिव्य द्वार का दर्शन पार पार अंदर प्रवेश, नो लाइटिंग, नो सनलाइट, only brightness, only brightness. क्या महसूस कर रहे हैं इस स्थल में? धरातलहीन अवस्था में लंबी लाइन, स्त्री पुरुष, दिव्य पुरुष अंतर ध्यान हो गए। पहुंचने वाले प्राणियों का कर्म का लेखा जोखा दृश्य काले रंग के यमदूत विकराल, क्या महसूस कर रहे हैं इस प्राणों समय? में घबराहट, नहीं देखने की इच्छा हो रही। जो आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसे विस्तार से बताइए। दोनों दिव्य पुरुष आ गए हैं, उठाया जा रहा है। मैं हाथ जोड़ करके खड़ा हूँ। मैं हाथ जोड़ करके खड़ा हूँ। धर्मराज सिर्फ सुनते हैं, मेरी उम्र अभी बहुत शेष है। मुझे उपस्थित देखकर क्रोधित हैं, लाने वालों पर इसी समय आप यमधर्मराज से एक संदेश लीजिए मेरे लिए।
क्या संदेश? एक जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, अभी शरीर का कुछ नहीं बिगड़ा है। मुझे वापस मृत्यु लोक में डाला जा रहा है और मैं एक वृक्ष से टूटे हुए पत्ते की तरह उन दिव्य पुरुषों के साथ नीचे गिर रहा हूँ। अब वो मुझे बीच में छोड़कर पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गए हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? रिलैक्स, रिलैक्स, पीस, जीवन में कुछ करने की उत्साह, अनुभव, फिर से एक नया जीवन जीने का अध्याय प्रारंभ। इस वक्त आप अपने शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। इस पल के बारे में बताइए। अभी मैं नीचे गिर रहा हूँ और नीचे और नीचे नेत्रों के माध्यम से शरीर में पुनः प्रवेश कर रहा है। गिरने का एकदम झटका, अत्यंत वेदना, कमर दर्द, मैं हूँ, मैं शरीर हूँ। सब लोग इकट्ठे क्यों? तो क्या मैं मर गया था? भगवान ने एक बार पुनः मुझे सन्मार्ग पर चलने और सत्कर्म करने का सुअवसर प्रदान किया है। धीरे धीरे वापस वर्तमान में लौट आइए। With all this freshness, with all the peace, with all this divine experience. As I count 1, 2, 3, slowly open your eyes. 1, 2, 3. Slowly open your eyes. नारायण, Wonderful doctor. so many thanks. Wonderful doctor. How are you feeling? Very nice. Very nice. Wonderful. Wonderful. Oh, I want to slowly give you a hug. ब्रिज बिहारी जी, जी आज आपने वही सफ़र तय किया जो आज से 25 साल पहले आपने किया था। जी। आज आपने क्या महसूस किया? आज मैंने उस अनुभव को, जिसको हम कालांतर या अतीत में कह सकते हैं, वो चला गया था, उसको एक बार फिर से
सजोने संवारने का सुअवसर सुअनुभव आज फिर एक बार किया। और मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है मेरी डिक्शनरी में कि मैं उसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित कर सकूं। बहुत अच्छा लगा मेरे। And like a bird having the two wings, one wing is nothing but karuna. Karuna means compassion, kindness and love. And another wing of the bird is pragya, wisdom. What is wisdom is knowing that you are the Atma, you are the soul, you are not only the body. Body is only a medium. That is the true wisdom. And wisdom and karuna, both pragya and karuna are required to fly like a bird. With only one wing, you will not fly. थैंक यू सो मच डॉक्टर न्यूटन। एक आज़ाद पंछी की तरह जिंदगी के आकाश में उड़ान भरने के लिए हमें 2 मिनट। Sir, आपके लिए ये जो क्रिस्टल कमल दिया है डॉक्टर न्यूटन ने, क्या मायने रखता है डॉक्टर साहब? इनका ये संदेश है मेरे लिए कि जिस तरह से ये कमल खिला हुआ है, उसी तरह से जब तक मैं इस संसार में रहूं तो स्वयं भी खिला हुआ रहूं, और संसार के जो मेरे संपर्क में आने वाले लोग हैं, मेरे संबंधी लोग हैं, जो मेरे से रिलेटेड हैं, उनको भी मैं इसी तरह से खुशियां प्रदान करती उनको खिलाता रहूं। यही डॉक्टर न्यूटन का मेरे लिए संदेश है। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत करता शुक्रिया, हूं। धन्यवाद आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर लक्ष्मी, थैंक यू डॉक्टर न्यूटन, थैंक यू सो मच। सेवा में सुख है, जरूरतमंदों की मदद में मिल बांट कर जीवन जीने में ही जिंदगी पूरी मिलती है, और उसका कोई भी रंग अछूता नहीं रहता। कुछ तो हम खुद जी लेते हैं और बाकी देख लेते हैं दूसरों के माध्यम से। हमारी भी यही कोशिश है, कुछ लेकर कुछ देकर मिल बांट कर एक भरा पूरा जीवन जिए, जिसके लिए एक बार फिर चलेंगे ऐसे ही एक और सफर पर डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के संग। एक बार फिर मिलेगी दोबारा जिंदगी। जब मैंने डॉक्टर न्यूटन से गाइडेंस मेडिटेशन लिया, उसके बाद से मैं ये समझ पाया कि नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है और जीवन के अंदर क्या हमारा एम है, वो मैंने प्राप्त किया। तब से मैंने अपने आप को ऊर्जावान पाया और मेरी जो नेगेटिव थिंकिंग थी वो पॉजिटिव में बदली, और तब से मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। उसके लिए मैं डॉक्टर न्यूटन का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय